continuing here at the Mojo Story, and we are going to join a very special guest. Yes, let's bring him up. Pradeep Gupta of Access My India is with us, and I should say that exit polls ran into some rough weather, but Access My India for the last two elections has managed to get it absolutely bang on. Pradeep ji, you had actually forecast between 45 to 55 seats for the BJP and a 48% vote share, and that's pretty darn close, almost exactly what has happened. So congratulations to you, Pradeep Gupta of Access My India. क्या हुआ? पहले तो आपको relief हुआ होगा that you got it right. So first thoughts on that. So, I mean, we try our people, particularly Access My India team member in the ground, and result is quite evident in front of all of us. So, it's a hard work of Access My India which always paid off. And this time, Congratulations. I would say, Barkhaji, if you can correct your BJP plus it is because JDU and LJP has contested in one seat each. So that Yeah. 1.2 point percentage points you would may like to add to your vote share, what you're showing on your display. Oh, let me bring up the vote share wala graphic and then we should correct it. So you're Yeah. basically saying that if you add the BJP plus, the vote share goes up even more. 47 point something, we predicted 48. Oh my God. So you are just right there. Could we please update Yeah. that graphic? All right, Pradeep ji, Yeah. while we do that, Yeah. while even without that adding that point, you as I said, you were pretty darn exact in your forecast. So आपको मुबारक हो उसकी. लेकिन क्या ये how do you explain this? How do you explain this? This is actually when we ask people why you are shifting to whoever say the we have voted last time Aam Aadmi Party and this time we are likely to vote to BJP or the Congress for that matter. हम लोग हमेशा पूछते हैं उनसे भाई इसकी कुछ खास वजह है शिफ्ट की तो कहते थे साहब वो केजरीवाल अब वो केजरीवाल नहीं है वो आम आदमी पार्टी अब वो नहीं है मैंने कहा क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप तो उसका Hmm. सबसे बड़ा कहते थे देखिए ना ये 5 साल में तो कुछ यानी उनकी भाषा में वो कहते थे मैं अपनी भाषा में बोलूं कुछ नोटेबल तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है हमारे लिए कुछ नोटेबल जो भी किया था वो 15 से 20 के शासनकाल में किया था एंड पंजाब में उन्होंने 1000 प्रॉमिस किए थे महिलाओं को जो कि अभी तक पूरे नहीं किए और जब बीजेपी के नेताओं से मीडिया में पूछा जाता तो बड़ा कैजुअल जवाब देते थे कि 5 साल के लिए सरकार बनाइए कर देंगे क्या जल्दी है सो आप ये Hmm. देखिए कि दे वर प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल इन दैट सेंस यू नो Hmm. व्हिच इज नेवर अ गुड साइन फॉर एनी लीडर ऑफ द पार्टी they lost the credibility loss there's huge loss of a credibility on that account too Yeah. beyond that the kind of projection they have came to the power or to the politics clean honest governance etc etc आम आदमी की तरह हम रहेंगे नो बंगला नो गाड़ी बाद में बंगला भी अच्छा खासा बना लिया है कम से कम उसको आम आदमी का घर तो नहीं कह सकते इफ नॉट सीसमैन वो भी एक फर्क पड़ा फिर जी. उसके बाद केजरीवाल जी ने लगातार अपने स्पीच में ये कहा खासकर पिछले 15 से दिन से 1 महीने के दौरान कि मैंने तो दिल्ली की सीट को छोड़ के 2 बार छोड़ दिया Hmm. इज दिस नॉट द इंसल्ट ऑफ द मैंडेट देन व्हाट कि लोगों ने आप पे विश्वास किया और आप उसको इतने प्राइडली कह रहे हो कि मैंने इस चीज के लिए ऐसे कर दिया सो दीज वर ऑल थिंग्स ऑन द अदर हैंड people found BJP as a better alternate, much better alternate on various account. जो उन्होंने 2100 इन्होंने प्रॉमिस किया जो उन्होंने नहीं माना विश्वास नहीं किया वही क्रेडिबिलिटी Hmm. लॉस 2500 Hmm. के बारे में माना और खासकर तब जबकि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपोजिशन में रहते हुए प्रॉमिस किया था और उसको डिलीवर किया महतारी योजना के तहत और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सरकार में रहते हुए चुनाव के मच बिफोर इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया एक ये था दूसरा लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भी चूंकि दिल्ली में ही बैठे हुए हैं दोनों वहीं पर ही हैं तो पैरेलल ड्रॉ करते हैं एज फार एज द गवर्नेंस एंड दे फाउंड that central government performance is far better particularly in last 5 years than the state government of Aam Aadmi Party so एक जबरदस्त इनकी इनकम्बेंसी और तीन डेमोग्राफी ने जो सबसे ज्यादा हालांकि अभी भी आम आदमी पार्टी को 43% वोट मिल रहा है which is also Hmm. sizable enough in that sense despite that you are losing and losing Yeah. in a big way आप 1/3 सीट भी नहीं है आपकी 2/3 से ज्यादा बीजेपी की सीटें आ रही है 68% to be precise so
जब आपने 5 साल पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली और हम्म। पानी के बिल और महिलाओं को फ्री राइड, ये उसी 43% जो है वहां बैठे हुए हैं। बट लोगों को ऐसा मानना है ज्यादा करके, विच इज 48% रफली, कि भाई अब बस हो गया। अब वो शीन नहीं रहा, जैसे बोलते हैं ना क्रिकेट की भाषा में, बॉल में वो चमक नहीं रही। और हमेशा ये लगता है कि कुछ तो नया होना चाहिए। तो दिस इज द हाँ। फिनोमिना ऑफ दैट। एंड बीजेपी और मोदी, और खासकर उन्होंने केजरीवाल की गारंटी कहा, उस उन्होंने एक कार्ड भी इशू किया था आम आदमी पार्टी ने, घर घर जाके, जब 2100 रुपए की योजना के फॉर्म भरवा रहे थे वो। और बीजेपी ने कहा ये मोदी की गारंटी है कि एक 2500 रुपए और एक 2 फ्री सिलेंडर, बहुत बड़ी चीज है। तो 3 डेमोग्राफी ने बड़ा डेंट किया आम आदमी पार्टी को। दलित वोट लाख बड़ी संख्या में वापस बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। दैट्स दूसरा है, वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? पर इसका क्या कारण कि कारण दलित यही जो वोट मैंने वापस? बताया, देखिए दलित वोट तो सब सरकारी सुविधाओं के लिए, हम्म। उनको सबसे बड़े बेनिफिशरीज भी होते हैं इन दैट सेंस, बहुत सी चीजें रिजर्व होती हैं, और अदरवाइज हम्म। ऑल्सो लोअर इनकम ग्रुप में। हम्म। तो सबसे बड़ा फर्क वो। दूसरा, महिलाओं का फर्क। हमारे डेटा पॉइंट्स में 12 पॉइंट्स पॉइंट्स जो बीजेपी को पिछली बार 30% मिल रहे थे, इस बार 16% ऐड होके 46% वोट मिलता दिखा महिलाओं के बीच में, जो हम्म। केजरीवाल से करीब 12% और कांग्रेस और अदर से 4% जुड़ के जो है वो इतना बड़ा नंबर बना बीजेपी के पक्ष में। और तीसरी चीज है मिडिल क्लास। बीजेपी में देखिए, बीजेपी एक ऐसा छोटा और मेट्रो सेंट्रिक राज्य है, मेट्रो सिटी सेंट्रिक राज्य, हम्म। जिसमें पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो लोअर बॉटम ऑफ द पिरामिड होता है, विच कंट्रीब्यूट्स अबाउट 50 to 60%, और करीब मिडिल क्लास जो होता है तो 30%, और अपर अपर नॉट क्लास, मैं इकोनॉमिक स्टेटा की बात कर रहा हूँ, करीब 10% उसको ले लीजिए। बी दिल्ली के अंदर ये उल्टा है। करीब 50% के करीब 60% के करीब मिडिल क्लास है। जब हम मिडिल क्लास कहते हैं, उनको हम क्लासिफाई करते हैं जिनकी मासिक आय हम्म। 50,000 से 70,000 के ऊपर हो, उसको मिडिल क्लास कहते हैं। और दिल्ली हम्म। के कॉन्टेक्स्ट में ये बढ़ के 70,000 से 1 लाख हो जाता है, क्योंकि दिल्ली इज अ हम्म। कैपिटल सिटी। तो ये जो मिडिल क्लास का सबसे बड़ा शिफ्ट हुआ, और खासकर बजट के बाद और बजट के पहले भी, मैं जो वही दो, पूछने वाली थी कि बजट से कितना फर्क पड़ा है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि वो पिछले 72 आवर्स में, लास्ट माइल में ये चुनाव बदला है, नहीं बजट मैं की बता वजह से बदला है। आप मैं मानते हैं इस बात को? मैं बता 40, आई मीन दोनों पार्टियों का 1 महीने पहले तक करीब करीब बराबर वोट आ गया था, 1 महीने पहले। उसके बाद बीजेपी ने जब ये 15 दिन पहले योजना लाई, उसके पहले नहीं लाए थे, उसके पहले वो तमाम दूसरी बातें कर रहे थे। खासकर लोगों को तो यार हमारे अकाउंट में क्या आ रहा है, लोगों को उससे मतलब होता है। हम्म। तो 15 दिन पहले जब उन्होंने ये लेके आए 2500 रुपये और गैस सिलेंडर फ्री, 2 सिलेंडर, तब जाके ये 1 से 2 पॉइंट्स बढ़ गया। हम्म। और जो बजट जैसे ही आया, तो ये जो अंतर था दोनों पार्टी, जो करीब करीब पैरेलल था 1 महीने पहले, 2 पॉइंट से 3 पॉइंट तक बढ़ा जब इन्होंने योजनाओं को लेके आए, ये वाली फ्री वाली। और करीब 2 पॉइंट फर्दर बढ़ गया जबकि ये मिडिल क्लास का हुआ। तो कहने का मतलब, जो अंतर दो पार्टी के बीच में 5 पॉइंट्स का दिख रहा है, 43 वर्सेस 48, ये जो हम्म। अंतर था, मिडिल क्लास जो है 2% का वोट तुरंत उस समय बढ़ गया जब इन्होंने बजट लेके आए। तो ये एक आकलन है, क्योंकि हमारे तो वोट आप कह शेयर रहे हैं 1 महीने पहले तक लगभग दोनों पार्टीज इवनली कंटेस्टेड थी जी, और फर्क वोट पड़ा। शेयर के लिहाज से, सीट वोट में शेयर थोड़ा के फर्क लिहाज से। होता है। उसका कारण है कि आम आदमी पार्टी को मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में, जो कि 9 है, और 21 सीटें जो है, सॉरी 12 सीटें जो है दलित हैं, तो 21 सीटें ये मिलके होती हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी लीड मिलती है। तो उसके लिए परसेंटेज के लिहाज से आप देखेंगे कि बहुत बड़ा नंबर अभी भी आपको आपकी स्क्रीन पे 43.7 दिख रहा है। बट जी। वो उन्हीं केवल कंसोलिडेटेड 9 और 12 सीटों से आ रहा है। उसके उलट जो है, वो बड़ी संख्या जो है करीब 49 सीट्स की है। वो 49 अपने आप में बहुत होता है, जहाँ पे कि इसलिए अंतर देखिए बीजेपी का कितना ज्यादा आता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बजट बम्प रहा, उनकी योजनाओं की जो उन्होंने अनाउंसमेंट की, उस स्कीम्स का बहुत बड़ा फर्क पड़ा। लेकिन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। आपने कहा कि केजरीवाल का केस ऐसा था कि जैसे क्रिकेट में कहते हैं, बॉल बॉल में जी वो चमक नहीं रही।
तो बीजेपी ने सीएम कंटेंडर नहीं डिक्लेयर किया, ठीक है। बहुत से लोगों को लगा कि अरे अगर बीजेपी कर देती तो पक्का जीतती। उस समय तो लग रहा था कि चलो केजरीवाल के नंबर गिरेंगे लेकिन वो जीत जाएगा, नंबर गिरेंगे, मार्जिन है गिरने का, जीत जाएगा। बीजेपी की चमक पर्सनालिटी सेंट्रिक नहीं रही, और उन्होंने लास्ट फ्यू इलेक्शंस इस न्यू ब्लूप्रिंट के साथ कंटेस्ट किए। ये बीजेपी की नई ब्लूप्रिंट का जरा बात करिए। देखिए बीजेपी का ऐसे है कि आप चीजों को समझिए, जब भी वो डिक्लेयर करते हैं तो क्यों करते हैं और नहीं करते हैं तो क्यों करते हैं। देखिए हमेशा से ऐसे होता है कि कुछ पर्सनालिटी ऐसी होती है, इंडिविजुअल्स होते ऐसे होते हैं कि यदि उनके सामने किसी और को आप खड़ा करें तो उसके इर्द गिर्द तो आना चाहिए। करेक्ट। हम्म। हम्म। जिसके भी साथ आप रिंग में जाने वाले हैं कॉन्टेस्ट करने के लिए, उसके आपको इर्द गिर्द तो होना पड़ता है ना। तो जो ये टॉल पर्सनालिटीज हैं अपने आप में देश के अंदर, खासकर अपोजिशन की बात कर लें कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ये एक कल्ट पर्सनालिटी है। ये हम्म, तो जब इनके खिलाफ आप करी ये मोहलत ले ही नहीं सकते कि आप कोई कैंडिडेट डिक्लेयर कर लें, क्योंकि हमेशा पैरेलल ड्रा होगा ना, और पैरेलल में ये तो नीचे ही पाए जाएंगे। इनको तो अभी काम नहीं, करना पर है जैसे उनको। बीच में चर्चा चल रही थी कि स्मृति ईरानी भी एक फेस हो सकती है, जैसे चर्चा है ये सिर्फ में। मैं हम्म। वैसे ही कह रहा हूँ मैडम आपको, क्वेश्चन डजन अराइज। ये तो तब आता है कि कौन होगा जब ये डिक्लेयर हम माइंड में पार्टी अपने माइंड में मन बनाए कि हमने कैंडिडेट देना है, तब सवाल आता है किसको देना है। हम्म। ये मोहलत ले ही नहीं सकते हैं कभी भी। मैं आप देख लीजिएगा इन सारे राज्यों में जहाँ पे कि इस तरह का पर्सनालिटी वो होता है, सवाल ही नहीं होता। चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी, ये अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी है। इनके सामने मैच करने के लिए आपको इसके इर्द गिर्द तो खड़ा होने वाला चाहिए ना। तो आपके मुताबिक बीजेपी वाज स्मार्ट इन नॉट पुटिंग अप अ कैंडिडेट ऑफ कोर्स अगेंस्ट यस, ऑफ कोर्स यस, अरविंद केजरीवाल। ऑफ कोर्स यस, ऑफ अच्छा, कोर्स। कांग्रेस की बात करें, बीजेपी पे हम वापस आते हैं, पर आपका चमक शीन चला गया, चमक चली गई। कांग्रेस की उम्मीद थी कि इस बारी वोट शेयर थोड़ा बढ़ेगा, फाइनली थोड़ा सा ही बढ़ा। सीट 3 कंसेक्यूटिव इलेक्शंस कांग्रेस की जीरो रही है, राइट? तो हाउ डू यू लुक एट कांग्रेस का रोल? देखिए जब वापस जहां भी होता है कि जो जीतने और जो खासकर जीत के सरकार बनाने की उम्मीद में, आप पिछले 15 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। 30 असेंबली इलेक्शन मल्टीप्लाई 3 कर दें तो 90, और 3 लोकसभा 93। केवल 5 समय पे ऐसा है कि लोगों ने मैंडेट फ्रैक्चर दिया या बड़ा स्लेंडर सा मैंडेट दिया। बाकी मैंडेट सब 2/3 के आसपास है। 2/3 से कम तो बात ही नहीं होती कहीं पर भी। ये भी देख लीजिए यहाँ पर भी जो बीजेपी का है 2/3 से ज्यादा है। 47 सीट्स का है तो 67% है। तो अब लोग जीतना, विनिंग कॉज में अपना वोट डालना चाहते हैं, तो वो नहीं पाते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सामने कांग्रेस कहीं भी सरकार बनाती दिख रही है। उसके लिए आपको 5 साल मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को दिखाना पड़ता है कि आप बना सकते हो सरकार। जैसे कि आप देखिए अपना ये क्या नाम है इनका, प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं। जैसे जी। कभी देखिए साइकिल से पूरी यात्रा करी थी 2012 के पहले अखिलेश यादव ने। जैसे हम्म। देखिए जगन मोहन रेड्डी ने 19 के चुनाव के पहले पूरी जबरदस्त यात्रा करी थी उन्होंने, घर घर जाके और करके करीब 2 साल से 3 साल तक। तो ऐसे तमाम आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। राहुल गांधी ने भी यात्रा करी, उसका असर उनको देखिए, सीटें 55-56 से 99 हो गई उनकी लोकसभा में। जी। तो ये आपको दिखना तो चाहिए कि लड़ते हुए और आप वाकई में टक्कर दे सकते हैं और जीत सकते हैं, तब तो आप जनता आपके साथ जाएगी। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस को आपको लगता है उन्होंने मेहनत नहीं की? आम आदमी पार्टी, एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी कि जो 3 नेता आम आदमी पार्टी के जेल में गए थे, राइट, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल खुद, तीनों हारे। इसका मतलब देयर वाज जीरो सिंपैथी। अब ऑपोजिशन का कहना बार बार है कि ईडी को वेपनाइज किया गया है, ये फॉल्स केसेस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका मतलब लोगों ने उनकी तरफ एक सिंपथी, एक एम्पथी नहीं दिखाई। वो नहीं माने कि ये ठीक है, मैं मानती हूँ कि वोट शेयर आपका फिर भी एक बेस था, वो रहा, लेकिन दैट सिंपथी सर्ज, एक सिंपथी सर्ज होता है कई बारी, वो नहीं मिला, बल्कि तीनों लोग जो जेल गए, तीनों हारे। देखिए सिंपैथी ये बिल्कुल आपने, ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, और मैं हाँ। सोशियोलॉजी मतलब सोशलॉजी प्लस साइकोलॉजी।
ठीक है। Yes, yes. सिंपैथी देखिए ऐसे होता है, सिंपैथी उसके साथ होती है जिसके साथ आपको प्यार मोहब्बत होती है, इन द सेंस कि आपको लगता है हमारे जीवन में इसका कुछ ना कुछ तो रोल है, और यदि उसको कोई तकलीफ होती है या कोई चोट पहुंचती है तो उसका दर्द आप महसूस करते हैं, ठीक है। Hmm. वो केस था हेमंत सोरेन का, कि हेमंत सोरेन ने कुछ तो वो जो योजना लाई थी उन्होंने, और पैसे भी दे दी, वहां पे भी उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, महिलाओं की, और वो भी जेल गए थे, और उनको 2/3 की विक्ट्री मिली, 2/3 मेजोरिटी मिली, अभी रिपीट की उन्होंने सरकार। तो वही मैं कहता हूँ कि वो सिंपैथी लेने के लिए भी आपको उसका एक बेस जो होता है ना, जो बेस तो होना चाहिए कि भाई मैं आपके साथ सिंपैथी क्यों रखूं। Hmm. तो सवाल ये नहीं है कि जेल, या सवाल ये नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोप, सवाल ये है कि ही हैज लॉस्ट दैट सीन, जिसके तहत सिंपैथी भी आपकी तरफ आए, वो ही इज लॉस्ट दैट। Right. Just for a moment, turning towards Uttar Pradesh, I am going to come back to Delhi because I see the Milkipur bipole slide on our screen. Um, how do ये यूपी का नतीजा आप कैसे देखते हैं जो बाइपोल मिल्कीपुर का आया है? यूपी का देखिए, जो लोकसभा में हुआ था हम उसी से कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए ये मिल्कीपुर मिल्कीपुर की हम चर्चा कर रहे हैं आज की डेट जी, में। जी, जी, जी। लोकसभा में दलित वोट बड़ी संख्या में पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ और कंसोलिडेट हुआ, वहां भी उनको ऐसा लगा कि अब मायावती में वो शीन नहीं रहा, तो जो शिफ्ट होना था बीजेपी से वो, और मायावती से भी शिफ्ट जो होना था वो अपोजिशन के इंडिया गठबंधन के खाते में गया, और उसके चलते ये रिजल्ट आया जो भी आया, 43 सीट गठबंधन जी। की मिला, 3706 कांग्रेस की। तो बड़ी बात उसके अंदर ये है कि अब जो है वो दलित वोट क्यों वहां से शिफ्ट हुआ था बीजेपी से, वो हम्म। इसलिए हुआ था कि संविधान से उनको नहीं बात है, बात थी कि संविधान के चलते आरक्षण से सारा कुछ लेना देना है, और उसके चलते समाज को लगा, जो महाराष्ट्र में भी आप देख लीजिए और हम्म। यूपी में भी, यहीं पर बड़ी संख्या में दलित है, और खासकर विदर्भ में, महाराष्ट्र की बात कर ले तो विदर्भ में केवल दलित और आदिवासी है, और जो सबसे बड़ा आरक्षण संविधान के तहत दिया गया, बाकी ओबीसी का तो वीपी हम्म। सिंह के मंडल के बाद आया, तो वो बड़ी संख्या में शिफ्ट हुआ दोनों जगह पे। यूपी में तो अब आदिवासी है नहीं, तो उसका असर आप देख पा रहे थे, जो अब वैसी कोई बात रही नहीं। लोगों को समझ में आ गया कि यार ऐसा कुछ तो नहीं था, या ऐसा भी मान लें हमने इनको सीट दी ही नहीं इतनी कि तो ये कहाँ से कुछ भी कर पाए। तो हम्म। वो क्वेश्चन डजंट अराइज। और आज की डेट में राज्य सरकार जहाँ भी होती है, जब भी कोई बाईपोल होता है तो उसका असर तो राज्य सरकार का के फेवर में जाता है जनरली, वोट जो हम्म। भी होता ओके, लेट्स रिटर्न आवर फोकस टू दिल्ली। मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई उत्तर प्रदेश की स्लाइड देख के। वापस आते हैं तो मोदी फैक्टर को आप किस तरह से देखेंगे? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बीजेपी हैज मेड अ कॉन्शियस स्ट्रैटेजी। कैन वी कम आउट ऑफ द मिल्कीपुर ग्राफिक एंड कम बैक टू दिल्ली? बीजेपी हैज मेड अ कॉन्शियस स्ट्रैटेजी, प्रदीप जी, कि प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा कम इस्तेमाल किया जाए एज अ फ्रंट फेस फैक्टर इन असेंबली इलेक्शंस, राइट? तो क्या कितना असर पड़ा, कितना असर नहीं पड़ा ऑफ द मोदी फैक्टर? है। देखिए, मोदी फैक्टर दिल्ली की जहां तक बात करें, क्योंकि कैपिटल है, तो जी। ना सामने रहते हुए भी रहते हैं, ये मानो, हम्म। ना हम्म। सामने रहते हुए भी रहते हैं। हाँ, आप ये हम्म। जरूर कह सकते हैं महाराष्ट्र के केस में और झारखंड के केस में, जो खासकर क्योंकि एकदम इमीडिएटली लोकसभा के बाद हुए थे वो, तो हम्म। और दोनों जगह पे अच्छा खासा डेंट पड़ा था बीजेपी को, महाराष्ट्र झारखंड दोनों जगह लोकसभा में। तो वहां पे उन्होंने उनको फोरफ्रंट पे नहीं लाया, और तमाम तरह की योजनाएं चलाई महाराष्ट्र में, क्योंकि सरकार में थे तो चला सके वो योजनाएं, ये 1500 रुपए वहां पे अकाउंट में। और यहाँ पर लेकिन जो है दिल्ली में फोरफ्रंट पे तो थे, माने मोदी की गारंटी बोल के पब्लिसिटी कैंपेन ये तो किया गया था, बट व्हेन यू से गारंटी, इट्स मोर ऑन परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी, एंड व्हेन यू राइट। पुट फॉरवर्ड द पर्सनालिटी विदाउट द performance, then that personality doesn't hold good. That personality is created or developed over a period of time, purely based on performance. What else? The brand Hmm. equity, what you call in So, marketing. so you're saying the Modi factor doesn't have to be advertised in a conventional way. The Modi factor, at least in a place like Delhi, a city state like Delhi, is just there because this is the seat of government.
मतलब आप ये कह रहे हैं कि है ही, वो है ही, उनको रैलीज करने की जरूरत नहीं है। इन द नेशनल कैपिटल मोदी इज द फैक्टर। द मोमेंट यू अटैच द गारंटी, देन पर्सनालिटी से ज्यादा परफॉर्मेंस पे आप फोकस शिफ्ट कर रहे हो। गारंटी फॉर व्हाट? भाई चेहरा देख के थोड़ी ना मोदी के वोट देना, यू नो। इवन हमारे बॉम्बे में ऐसे कहते हैं हमेशा, अरे भाई आप, अरे चालू भाषा में सबको कहते हैं, अरे भाई आप हो गए अमिताभ बच्चन अपने घर के, लेकिन हमको क्या, हम क्या करें, आप अमिताभ बच्चन हो हाँ तो दैट हाँ गारंटी जो वर्ड जुड़ा है इसमें अंदर, मीनिंग भाई मोदी है तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएगा, जो एक हर सरकार का काम है, हर नेता का काम है। आप कर क्यों रहे हैं? हम्म आपका काम क्या है? तो थोड़ी हम आपको देख के कोई मूवी थोड़ी देखने वाले हैं आपको देख। सो हम्म दिस इज व्हाट इट इज। ओके, आई नो वी हैव ओनली अ कपल ऑफ मिनट्स लेफ्ट विद यू। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत चर्चा ये भी हुई है हाउ बीजेपी हैज परफॉर्म्ड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज, खासकर मुस्तफाबाद की बात हुई। आई नो यू स्टडीड दिस इन योर एग्जिट पोल एज वेल। इसके बारे में बताइए। देखिए, बीजेपी ने मुस्तफाबाद में जीत हासिल की है, तो वहां पर जब मुस्तफाबाद की आप सीट देखेंगे तो सवाल जीत का नहीं है। जीत हो जाती यदि वोट का स्प्लिट होता, बट मुस्तफाबाद में मैं, आप जब बात कर रही हैं मुझसे, तो मैं आपको बताऊं मुस्तफाबाद की जो मार्जिन है अभी के समय में वो कितना है, वो जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। हम्म 17,578, 17,578 जब ये मार्जिन होता है तो इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। बस एक ही मिनट दे दीजिए आपने, चूंकि उसको मुस्तफाबाद जी को छेड़ा है, तो जी मुस्तफाबाद की चूंकि अभी काउंटिंग चल रही थी, अभी अभी मुस्तफाबाद में काउंटिंग खत्म हुई है सारे राउंड की। तो हम्म अच्छा होगा कि आपके दर्शकों को पिक्चर बहुत अच्छी हम दे पाने में सक्षम होंगे। जी कांग्रेस ने दिए 6% वोट, कांग्रेस ने 6। आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान ने मुस्तफाबाद में लिए, राउंड फिगर करके बता रहा हूँ, 34, और हम्म बीजेपी ने लिए 42, 34/42, तो हम्म 67,000 वोट और 85,000 वोट। कांग्रेस ने 11,000 लिए, तो दोनों के बीच का अंतर 17,000 है, और कांग्रेस ने 11,000 वोट लिए। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है, ओवैसी की पार्टी ने हाँ 33,000 वोट ले लिए, 33,000। तो ये जो यहाँ पे मुस्तफाबाद की बात करें तो करीब 45% मुस्लिम आबादी है, 45%। तो 45% में से देखिए कि आम आदमी पार्टी को हिंदू के भी वोट मिले होंगे, दलितों के भी मिले होंगे 33, एमआईएम को 17%, 33 प्लस 17 कितना हुआ, 50, और कांग्रेस को 56% हुआ। इसका मतलब ये है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट का विघटन हुआ, स्प्लिट हुआ इन तीन पार्टी के बीच में, जो कि 45% है। मान लीजिए कि 10% वोट इनको दीगरों के मिले, एक बोलचाल की भाषा में जी। मुसलमान के वोट बीजेपी को भी मिले होंगे, बट डेफिनेटली नॉट इन डबल डिजिट्स। सो बेसिकली मुस्लिम वोट का डिवीजन हुआ है। इस सीट के ऊपर, मुस्तफाबाद सीट के सो इट इज नॉट जैसे कि बोला जाएगा कि, मतलब आपको ये नहीं लगता कि साइजेबल नंबर ऑफ मुस्लिम्स हैव वोटेड फॉर बीजेपी? यू आर बेसिकली सेइंग मुस्लिम ऊपर। वोट इतना डिवाइड हुआ कि बीजेपी को फायदा हो गया। हाँ, हमारे इसमें जो है 73 टू बी प्रिसाइज, बीजेपी को 5% वोट, ओवरऑल प्रदेश की बात करें तो 5%, आम आदमी पार्टी को मुसलमान का 73%, और 15% वोट कांग्रेस पार्टी को, और अदर्स को, अन्य को बाकी जी 6% अन्य को। पूरे प्रदेश की हम्म, बात कर ले, मुसलमान को 73, आप 15 कांग्रेस, 6% बीजेपी एंड 6% अन्य, जी। उसमें वेरी एमआईएम आ। वेरी इंटरेस्टिंग। तो एमआईएम का मतलब वोट वोट स्प्लिटर रेपुटेशन जारी रहेगी। आपको इशारे से बुलाया जा रहा है। जस्ट वेरी क्विकली, बिग पॉलिटिकल मैसेज फ्रॉम द दिल्ली रिजल्ट बिफोर यू गो। बिग पॉलिटिकल मैसेज। You can't take people for granted. हम्म They need performance, they need delivery. If this is not going to happen, they are not going to, you know, trust you anymore, and they will move away from you, and they will throw you out of the power. थैंक यू प्रदीप जी, एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन। मैंने वहां लिखा है प्रदीप गुप्ता फॉर गेटिंग इट बैंग ऑन राइट। यू नो यू प्रिडिक्टेड अ 48% वोट शेयर फॉर बीजेपी प्लस, एंड देयर इट इज ऑन द And स्क्रीन। 45 seats to 55, the midpoint was करेक्ट 50, now it is 47 you are showing. So करेक्ट। thank वेल you. डन सर, अब बच्चे की कंग्रेचुलेशन। जान थोड़ी ले लोगे।
Okay, Pradeep ji. Thank you so much. Thank you. Take care. Thank Take you. care. Take care. All right. We are continuing our live broadcast.